नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के टॉप 5 सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रात के 11 बज रहे हैं और आज दिन भर क्या रही सुर्खियां, आइए दिखाते हैं वीएनएम के विशेष बुलेटिन में वीएनएम टॉप 5। गोत्री पुलिस थाने में बीती रात एक घमासान देखा गया। दरअसल एक विवाहिता ने अपने पति को होटल के बंद कमरे में अन्य महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ आइए आपको दिखाते हैं। सामाजिक नीति नियमों में बंधे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दे, ऐसा पति पत्नी और वो का एक और किस्सा शहर में सामने आया, जब भरूच की एक महिला ने अपने पति को निजी गेस्ट हाउस में एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, जब आदित्य राममोहन राय देसाई ने गीतांजलि से शादी की। 8 साल के शादीशुदा जीवन में दोनों को एक प्यारी सी बेटी भी है और बेटी लीवर की बीमारी से पीड़ित है। आदित्य राममोहन राय गांधीनगर सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर है। भरूच में रहने वाले परिवार के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ साल पहले आदित्य की पत्नी गीतांजलि को शक हुआ कि पति के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है और गीतांजलि ने पति पर निगरानी रखना शुरू किया। कल शाम गांधीनगर सचिवालय से पीछा करती हुई गीतांजलि वडोदरा पहुंची और निर्भया टीम के साथ गेस्ट हाउस के कमरे तक पहुंच गई और कमरे में जो नजारा दिखा वो किसी भी पत्नी के होश उड़ा दे ऐसा था। पति की करतूत से आहत पत्नी ने गोत्री पुलिस थाने में निर्भया टीम की सहायता से शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आदित्य देसाई और कमरे में पाई गई महिला पुलिस की गिरफ्त में है, जिन पर पुलिस कानूनी कार्यवाही कर रही है। गीतांजलि आदित्य देसाई શું થયું હતું આજે મારા હસબન્ડ ગાંધીનગરથી ઓફિસ પરથી નીકળ્યા એટલે મેં એમનો ગાડી પાછળ પીછો કર્યો। એમને બરોડા આવ્યા, બરોડા સુધી એમનો પીછો કર્યો। પછી એમને બરોડા અહીંયા સલૂનમાં દાઢી કરાવી અને ત્યાર પછી કીર્તિસ્તંભ આવ્યા। કીર્તિસ્તંભમાંથી પેલી બેન જે નીકળી કોમલ દેસાઈ, એણે ઇકોમાંથી નીચે ઉતરી અને એની ગાડીમાં બેઠી। ત્યાંથી એ લોકો કંઈ મંદિર ગયા। મંદિર ગઈને પછી ત્યાંથી નીકળ્યા, ત્યાં ખૌદરા ગલીમાં એ લોકોએ જમવાનું લીધું। મારા હસબન્ડે નથી ખાધું, પેલીએ જ ખાધું ને ત્યાર પછી એ લોકો ચા પીવા રોકાયા। ચા પીને ત્યાર પછી નર્મદા ગેસ્ટ હાઉસમાં 208 નંબરના રૂમમાં એ લોકો 2 જણા હતા। 9:50 ભરાયા હતા અંદર, બરાબર છે। મારા જ્યારે અમે રૂમ ખખડાયો પોલીસની ટીમ સાથે, ત્યારે મારા હસબન્ડનું શર્ટ કાઢેલું હતું ને પેલા બેન અંદર ખખડાવ્યું એટલે અંદર રૂમમાં ભરાઈ ગયા। મિની ગાઉન જેવામાં હતા અને મને એમ કહે છે કે અમે કુંડળી બતાવવા આવ્યા હતા, જેને 2.5 મહિનાથી પોતાની છોકરીને ડૉક્ટરને બતાવવાનો ટાઈમ નથી મળતો, રજા નથી મળતી, તે લોકોની છોકરીઓની કુંડળી બતાવવાનો એને ટાઈમ મળે છે। રૂમમાં ભરાઈને કુંડળી બતાવવાનો ટાઈમ મળે છે? એના મા બાપ કાં છે બંનેના? જો કુંડળી જ બતાવવા આવ્યા તો એ શામાં જોબ કરે છે? ગાંધીનગર સચિવાલયમાં જોબ કરે છે, સેક્શન ઓફિસર છે। જૂન 2018માં લાગ્યા છે, એટલે ગવર્મેન્ટ જોબ છે, એટલે જ્યારે હોય ત્યારે મને બધી ધારાઓ ગણાવે છે કે જ્યાં અભિયમને વાળાને બોલાવો, પેલાને બોલાવો, આને બોલાવો, એમ કરીને મને ધમકી આપે છે। હું ગયા અઠવાડિયે સચિવાલયમાં એમને સમજાવવા ગઈ હતી કે શું કરવું છે, હવે ક્યાં સુધી હું આમને આમ રહું, ક્યાં સુધી તમારી રાહ જોઉં। આજે 2017થી આ માણસ મને છેતરે છે। આ બેન કોણ છે એમની જોડે છે? એમનું નામ મારું શું છે? કોમલ અજીતભાઈ દેસાઈ કરીને છે અને એમ કહે છે કે એના મારા હસબન્ડ જે છે એટલે કે મારા સસરા એમના ફ્રેન્ડની છોકરી છું અને એ પણ કંઈ ડિવોર્સી છે। અને જ્યારે હું રૂમમાં ગઈ ત્યારે મંગલસૂત્ર બેને પહેરેલું હતું। ડિવોર્સી હોય તો મંગલસૂત્ર ક્યાંનું પહેરવાનું? કેટલા વાગ્યાનો સમય હતો તમે આ લોકોના ગેસ્ટ હાઉસમાં પકડાયા?
9:50 એ લોકોની એન્ટ્રી થઈ. ત્યાર પછી મેં નિર્ભયાની ટીમને ફોન કર્યો. એ લોકો આવ્યા પછી ઉપર 10-20 જેવું કે 10:30 જેવાનો ટાઈમ થયો હશે. એ તમે ત્યાંથી અમને ક્યાં લઈ આવ્યા? મેં એમને કીધું કે હજી જેવું હોય, મારા પેટે છોકરી પડી ને પોતે બી છોકરી છે, એટલે મેં એને ચાન્સ આપ્યો કે જે હોય તે સાચું કહી દે ને જે હોય તે સમજી જા. મારા પેટે છોકરી પડે છે તો હું એવું નથી વિચારતી કે તું બી દુઃખી થાય, પણ એ લોકોએ સ્વીકાર્યું ના, એટલે પછી આગળ મેં એક્શન લીધું અને પોલીસ સ્ટેશનમાં અત્યારે અમે લઈને આવ્યા છે. एसएसजी अस्पताल में इलाज हेतु लाए गए सेंट्रल जेल के कैदी ने पुलिस को धक्का मारकर वहां से फरार होने में सफल रहा. पादरा के वडू पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में सानपुर गांव के दिलीप वसावा आरोपी पाए गए थे, जो कच्चे कैदी के रूप में बड़ोदरा की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था. आज आरोपी दिलीप वसावा के हाथ में फ्रैक्चर होने से जेल प्रबंधन द्वारा उसे एसएसजी अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था. उस दौरान दिलीप वसावा पुलिस को धक्का देकर भागने में सफल रहा. घटना की खबर पाकर रावपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फरार कैदी दिलीप वसावा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे ढूंढ निकालने की कवायद शुरू कर दी है. हाल आज सुबह रावपुरा पुलिस स्टेशन पे एक आईपीसी 224 एंड 225 बी के तहत एक गुना रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि एक आरोपी जो कि सेंट्रल जेल के पास था और जो कच्चा काम का कैदी था, उसको हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ के डॉक्टर ने उसको एसएसजी रिफ़र किया था और पुलिस जाब्ते के तहत उसको यहाँ लाया गया था. जो कर्मचारी उसको लेके जा रहे थे उसको धक्का देके गिरा दिया और भाग गया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है और हम जल्द ही लगभग पकड़ लेंगे उसको, कुछ ही टाइम में उसको पकड़ लेंगे. हाल में उस आरोपी के विरुद्ध एक गुना दाखिल किया गया है और जो कर्मचारी है उनके लिए एक इंक्वायरी करके उनके बारे में भी जो भी कायदेसर होगा वो किया जाएगा. एमएस यूनिवर्सिटी में 21 करोड़ रुपयों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और उद्घाटन शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की उपस्थिति में किए गए. एमएस यूनिवर्सिटी में आज 21 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया. एमएस यूनिवर्सिटी के सेवंती बाग में इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन किया गया. डीएन हॉल निकट आर्ट्स फैकल्टी के हिंदी विभाग में श्रीमती महादेवी धुरेलाल शर्मा भवन का उद्घाटन हुआ है और एमएस यूनिवर्सिटी पवेलियन में यूनिवर्सिटी जिम का उद्घाटन भी इस मौके पर किया गया. कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, राज्य मंत्री योगेश पटेल, यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास, सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही. એમએસની ધરતી ઉપરથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીને સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન આપું છું. દીકરાઓ માટે હોસ્ટેલ, દીકરીઓ માટે હોસ્ટેલ, જિમ્નેશિયમ, હિન્દી વિભાગનું ભવન, આવું અનેકવિધ ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણના કાર્યક્રમો થયા છે. કુલ મળીને 40 કરોડ જેટલા કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થયા છે. ગઈકાલે રાજ્ય સરકારે આવા જ કામ માટે 40 કરોડ રૂપિયા બીજા પણ મંજૂર કર્યા છે. આ બધા જ કામો સુખ સુવિધા અને ગુણવત્તા માટે છે. યુનિવર્સિટી રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની જેટલી મળવાપાત્ર ગ્રાન્ટ છે, સહાય છે, એનો સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ કરીને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ,
વિદ્યાર્થીઓમાં ડિસિપ્લિન, વિવેક, એક ઉત્તમ નાગરિક આ યુનિવર્સિટીમાંથી સમાજને મળે એ હેતુ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારનો હોય છે। इस मौके पर उपस्थित शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस मामले बयान देते हुए कहा कि 29 तारीख को मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसी के चलते मामले में कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। नहीं, आमा राज्य सरकार, मारो शिक्षण विभाग क्यांय जवाबदार नहीं એટલે એને છાંટા ઉડવાનો સવાલ નથી, પણ કેન્દ્ર સરકારનું અને CBSEનું અમે ચોક્કસ ધ્યાન દોરીશું। સર, છેલ્લો સવાલ, FRC જે તમે જે લાગુ કરી છે એમાં વડોદરાની કેટલી શાળાઓ છે કે જેનો કોઈ નિયમ એમને અમલ જ નથી કરતી અને કોઈને ગાંઠતા જ નથી, લોકો એની સામે શું પગલાં રહેશે? આખો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અત્યારે પડ્યો છે, એ વિશે કંઈ કોમેન્ટ કરવી વ્યાજબી નથી। 29મી તારીખે એની આખરી સુનાવણી છે। ઓકે સર। शहर कांग्रेस का अनोखा अभियान यानी जनता मेमो, और आज जनता मेमो दिया गया पेंशनपुरा तालाब की गंदगी पर। निजामपुरा के पेंशनपुरा में पटेल चौक निकट तालाब में गंदगी की भरमार है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। कल ही इस इलाके में एक बच्ची की मौत हुई है और कई लोग डेंगू से पीड़ित भी है। बीमारियों से परेशान लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर वडोदरा महानगर पालिका को जनता मेमो दिया। यहाँ पे जब से जो पूर आया हुआ है, वहाँ जब से यहाँ पे रोगचारा फटा हुआ है, बाकी यहाँ कॉरपोरेशन कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर मेयर श्री को भी हमने रजूआत करी थी और संजय बारोड़ है जो यहाँ का वो है प्रमुख, वार्ड प्रमुख, भाई सुरेश तुवर है, हरीश है, ये लोग ने जिससे भी हमने कंप्लेन करी कोई ध्यान देता नहीं। पहले जाते हैं तो के रजा छे, सभा में गया छे ने अभी बोलते हैं कि दिवाली की छुट्टी है, तो ये छुट्टी मना रहे हैं, इसका मतलब कि ये लोग ही मजा करें, हम मरे गरीब आदमी। कि ये वेल है, बड़े बड़े सांप निकल रहे हैं, उन्हें गट डीट डेंगू है। हमारे 1 વર્ષની છોકરી મરીને પરમ દિવસે છોકરી મરી ગઈ, કોણ એ કરે? એના બચારી છોકરી રખડી, બધા રખડ્યા, કોઈ સામું જ નહીં જોતા। प्राथमिक सुविधा देने में कॉर्पोरेशन सदंतर निष्फल गई है, तो ये जनता ने भी कॉर्पोरेशन को जनता मेमो दिया है। क्योंकि यहाँ देखो कि जहाँ गंदगी है वहाँ ही आंगनवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रही है, तो इनके बच्चों के आरोग्य का क्या? पेंशनपुरा में एक घर छोड़ के दूसरे घर में मादगी है, लोग रोगचाड़े से भयंकर रूप से पीड़ित है। तो कॉर्पोरेशन को भी इनका ध्यान रखना चाहिए और ये जनता ने कॉर्पोरेशन को जनता मेमो दिया है। जल्द से जल्द उनको प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। शहर के नवलखी मैदान में फिर एक बार मराठी फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ है, जहां आप महाराष्ट्रियन जायकों का लुत्फ उठा सकेंगे। चैतन्य मराठी भाषिक मंडल द्वारा लगातार तीसरे वर्ष मराठी फूड फेस्टिवल वडोदरा के नवलखी मैदान में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन शहर की मेयर डॉक्टर जिगीषा सेठ के हाथों किया गया। इस फेस्टिवल में महाराष्ट्रियन समाज के तरह तरह के जायके शहर की स्वाद प्रिय जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही यहाँ हैंडीक्राफ्ट के कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये फूड फेस्टिवल 23 और 24 नवंबर को आयोजित हुआ है। फूड फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर पीएन गाडगिल एंड सन्स के नासिक के जोनल हेड राहुल सेवकरी, इनकम टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर विलास शिंदे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एडिशनल कमिश्नर उन्मेष शरद वाघ, चैतन्य मराठी भाषिक मंडल के अध्यक्ष मिलिंद बोडास समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। चैतन्य मराठी भाषिक मंडल पिछले 3 साल से ये आयोजन कर रहा है और इस बार ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 12,000 के ऊपर लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और ये 2 दिन का फेस्टिवल आयोजन करने में हमें बहुत आनंद हो रहा है कि इतने अच्छे वातावरण में
इतना अच्छे मौसम में इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें मराठी में आप कोई भी व्यंजन का नाम लीजिए वो यहाँ मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मराठी भाषिक फूड फेस्टिवल जो तीसरा साल चल रहा है, पहला फूड फेस्टिवल हमने 30 स्टॉल से शुरू किया था, वो जीकेएम ग्राउंड पे था। दूसरा फूड फेस्टिवल सेंट्रल जेल के पास मैदान पे, उसमें 35-40 स्टॉल थे। और हमें बहुत खुशी है कि इस वक्त ये जो अपने बड़ा ग्राउंड हमें मिला है नौलखी का, उसमें हम 50 से ऊपर स्टॉल क्रॉस कर लिए हैं। और इसका मेन उद्देश्य जो है, मेन जो हेतु है, वो मराठी खाद्य संस्कृति है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो पिज़्ज़ा और बर्गर की संस्कृति में से ऊपर नहीं आ रही है। तो इस जनरेशन को भी पता चले कि मराठी में भी अच्छे अच्छे व्यंजन है जो इतने ही नरिशमेंट आपको देते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश 3 साल से चल रही है और हमें ये रिस्पॉन्स देखते हुए अभी हम आशान्वित है कि इसके आगे भी हम इतना ही कर सकेंगे।